Hi everyone. Today we will cover the topic theories of international trade and we'll continue from the leftover part was theories of international trade. आज हम शुरू करेंगे. Basically theories है क्या international trade की? It is the exchange of goods and services as well as resources between countries. It involves transaction between residents of different countries. This exchange of goods and services as well as resources between countries. It involves transaction between residents of different countries. अलग अलग कंट्रीज के जो रेजिडेंट्स है उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो. ठीक है. एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड which involves exchange of goods and services within the domestic territory of a country using domestic currency. International trade involves transaction in multiple currencies. Compared to international trade, it has a greater complexity as it involves heterogeneity of customers and currencies, difference in legal system, more elaborative documentation. Therefore, at present, liberal international trade is an integral part of international relations and has become an important engine of growth. The theory of trade has been answered to one basic question as to what determines trade or why do countries gain by trading. कंट्रीज को क्यों फायदा होता है ट्रेड करने से और ट्रेड कैसे किया जाता है. एक तरीका है ट्रेड करने का जो कि हमने थ्योरी कुछ बनाई हुई है. एक जिसमें से पहली है मर्केंटलिज्म. Mercantilism, which was the policy of Europe, great powers, was based on the premise that national wealth and power are best served by increasing export. जो wealth है और जो power है वो export बढ़ाने से होती है. And collecting precious metals in return. Export बढ़ाओ और बदले में return लो. It also believed that more gold and silver a country accumulates, the richer it becomes. जितना सोना पैसा वो करेगी उतना ही एक country पैसे वाली होगी. The mercantilist rights argue that a key objective of trade should be to promote a favorable balance of trade. लेकिन ऐसा नहीं है. हमारा हमेशा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए. हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते रहे और बदले में गोल्ड और सिल्वर लेते ही रहे. एक एक पॉइंट आएगा जब अनफेवरेबल सिचुएशन अकर हो सकती है. इसलिए हमें एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड अकर करना जिसमें ना ज्यादा एक्सपोर्ट हो ना ज्यादा इम्पोर्ट्स हो, बैलेंस बने. A favorable balance of trade is the one in which the value of domestic goods exported exceeds the value of foreign goods imported. उसमें export ज़्यादा होता है. Trade with a given country or region was judged. Trade with a given country or region was judged profitable by the extent to which the value of exports exceeds the value of imports, thereby resulting in a balance of trade surplus and adding precious metals and treasure to the country's stock. Mercantilism advocated maximizing exports in order to bring more precious metals and minimizing imports through the state. ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा के जिससे ज्यादा जितने ज्यादा एक्सपोर्ट हम करेंगे उतने ही हम प्रीशियस मेटल्स इन रिटर्न ले पाएंगे और अपनी इंपोर्ट कम कर सके. हम इंपोर्ट कैसे कम होंगे? टैरिफ लगा के ज्यादा टैक्स ड्यूटी लगा देंगे तो लोग इंपोर्ट ही नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें महंगा पड़ेगा है इंपोर्ट करना फॉरेन गुड्स पे. पर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाए इन रिटर्न हमें मेटल्स मिल पाएंगे. This view argues that trade is a zero-sum game, which with winners who win does so only. जो जीरो सम गेम है एक तरीके से जो जीतता है हमेशा वो ही करता है. एंड द एक्सपेंस ऑफ लूजर्स एंड वन कंट्री गेन इज इक्वल टू अनदर कंट्री लॉस. और एक कंट्री के अगर गेन हो रहा है तो किसी दूसरी कंट्री को हमेशा लॉस भी हो रहा है. सो दैट द नेट चेंज इन वेल्थ और बेनिफिट्स अमंग द पार्टिसिपेशन इज जीरो. जो हमारा नेट चेंज है वो जीरो ही रहेगा क्योंकि अगर एक को गेन हो रहा है तो एक को लॉस भी हो रहा है और आपस में दोनों चीजें नलिफाई हो जाएगी तो वो जीरो हो जाएगा.
नेट चेंजेस हम कहते हैं। द आर्ग्यूमेंट्स फोर्थ बाय मर्केंटलिस्ट वर लेटर प्रूव टू हैव मेनी शॉर्टकम्स। बाद में हमने देखा कि इसमें बहुत से शॉर्टकम्स थे, जैसे कि इसमें हमने ये देखा कि हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि इन रिटर्न हमें मेटल्स प्रीशियस गोल्ड इन मेटल मिल सके। बट बाद में हमने लेटर ऑन रियलाइज किया कि एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए, जिसमें हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके और कम इम्पोर्ट कर सके। और मर्केंटल इसको करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किए इन ऑर्डर टू हैव प्रीशियस मेटल्स इन रिटर्न, और हमने इंपोर्ट्स में हाई टैरिफ ड्यूटी लगा दी। और इसे एक जीरो सम गेम हमने बोला गया, क्योंकि इसमें एक तरीके से अगर एक कंट्री को गेन हो रहा है तो दूसरे को लॉस भी हो रहा है, और नेट चेंज इसमें जीरो होता है। बट इट हैज वेरियस शॉर्टकमिंग्स ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट theory which explain policies followed by many big and fast growing economies in Asia. उसके बाद हम दूसरी थ्योरी पे आते हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ। याद रखने का एक तरीका है, सिंस इट स्टार्ट्स विद एब्सोल्यूट एडवांटेज, और ये एडम स्मिथ ने ही परफॉर्म की थी। ए फॉर एब्सोल्यूट एंड ए फॉर एडम स्मिथ। This was the first to put across the possibility that international trade is not a zero-sum game. कुछ nullify नहीं हो रहा है उसमें, since one is sacrificing and other is gaining something. Who supported unrestricted trade and free international competition. Absolute cost advantage is the determinant of mutually beneficial international trade. Unrestricted trade, ki free flow of goods and services ho, is the major determinant of mutually beneficial international trade. The absolute cost advantage theory points out that the country will specialize in the production and export of a commodity. एक पर्टिकुलर चीज की पर्टिकुलर नहीं सॉरी बेसिकली हम प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे और कमोडिटी एक्सपोर्ट पे, इन विच इट हैज एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। एक तरीके से उस चीज में तो हमें एडवांटेज रहेगी ही रहेगी। In other words, exchange of goods between two countries will take place only if each of the two countries can produce one commodity at an absolutely lower production cost than the other country. बाद में हमने ये डिसाइड किया, हम एक ही चीज की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज होंगे। हम एक ही चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और उसी को एक्सपोर्ट करेंगे म्यूचुअली। दोनों कंट्रीज में से, दोनों दो कंट्रीज है ए और बी, और उनके बीच में गुड्स का एक्सचेंज तभी हो सकता है, दोनों कंट्रीज में से एक कंट्री अगर एट अ लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट उस कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो दूसरे को एक्सपोर्ट करेंगे। ए और बी कंपनी है, उन दोनों में से एक कंट्री है जो लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो उसे प्रोड्यूस करेगी और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करेगी। स्मिथ थॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कॉन्स्टिट्यूट। अब जो प्रोडक्शन के केस में डिवीजन ऑफ लेबर तो आता ही आता है, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन बेसिस फॉर ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Theory is generally presented with an example of hypothetical two countries and two commodities model. इसको हमने बेसिकली प्रेजेंट किया है, एक हाइपोथेटिकल दो कंट्रीज ली गई है जिसे, और दो कम्युनिटीज मॉडल लिए गए जिसे हम 2x2 मॉडल बोलते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज एग्जिस्ट बिटवीन नेशन व्हेन दे डिफर इन देयर एबिलिटी, जब उनकी दोनों की प्रोडक्शन के एबिलिटी डिफरेंट है, और जो लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूस कर सकती है उसे हम प्रोडक्शन के लिए प्रेफर करेंगे। लेस एक्सपेंडिचर of human labor or more cheaply than the other. As a result, each nation has an absolute advantage in the production of one good. हर कंट्री में it has an absolute advantage over the production of one good in which they are specialized. जैसे कि ये कंट्री ए है और कंट्री बी है, ये वीट की 6 आउटपुट बना सकती है, तो ये एक ही बना सकती है। क्लोथ है, ये क्लोथ का की आउटपुट 4 कर सकती है, तो ये 5 कर सकती है। इसके बीट को बनाने के लिए हम किसको प्रेफर करेंगे, हम कंट्री ए को प्रेफर करेंगे, और क्लोथ को बनाने के लिए हम कंट्री बी को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। If both the nation can engage in trade with each other, each nation will specialize in the production of the good. It has an absolute advantage in and obtain the other commodity through international trade. एक को वो जिसमें वो स्पेशलाइज है उसकी वो प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और दूसरी को वो ट्रेडिंग से जैसे कि ये इसकी प्रोडक्शन करेगा तो ये इसे बेचेगा, और जो कि नहीं कर पा रही है इसे खरीद लेगा। Country A would specialize completely in production of wheat and country B in cloth. ये होता है हमारा theory of absolute advantage, जिसमें उसे एडवांटेज है। It
This theory gives the impression that mutually gainful trade is possible only when one country has an absolute advantage and the other has absolute disadvantage in the production of at least one commodity, and higher production in both the commodities as compared to another country. Let us now think of a situation where country A makes both wheat and cloth with fewer resources than country B. In other words, country has an A has an absolute advantage in the production of both the commodities and country B has an absolute disadvantage. This is a question that Ricardo attempted to answer when he formulated the concept of comparative advantage. Espouse the argument that even when one country is technologically superior in both the goods. अभी हमने देखा कि एक कंट्री एक गुड को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज है और दूसरी अनस्पेशलाइज्ड है दूसरी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बट अब एक सिचुएशन अराइज होती है अगर एक कंट्री दोनों ही गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशलाइज्ड है विद लेस ऑफ अ प्रोडक्शन कॉस्ट। तब हमने डेविड रिकार्डो ने ये चीज देखी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोफाउंड की उन्होंने। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या होता है, developed the classical theory of comparative advantage in his book Principles of Political Economy and Taxation, published in 1870. The law of comparative advantage states that even if one nation is less efficient, then has an absolute disadvantage with respect to the other nation in the production of all the commodities, there is still scope for mutual beneficial trade. Again, I will go through it. अगर एक लॉ ये बोलता है एक नेशन है जो कि लेस एफिशिएंट है देन द अदर, वो दोनों ही कॉमोडिटीज की प्रोडक्शन करने में, उस केस में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड अराइज होता है। द फर्स्ट नेशन शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन nation should specialize in the production and export of the commodity in which its absolute advantage is disadvantage is smaller commodity of its comparative advantage, and import the commodity in which its absolute disadvantage is greater। ठीक है। अब दोनों ही केसेस में क्या होता है, अगर एक नेशन है जो कि एफिशिएंट जो कि थोड़ा कम एफिशिएंट है दूसरी कंट्री से फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, एक नेशन है जो कि बहुत अच्छे से एफिशिएंट है और एक नेशन है जो कि बहुत अच्छे से एफिशिएंट नहीं है, तो जो कि थोड़ा लेस एफिशिएंट है वो क्या करेगा, वो एक कॉमोडिटी जिसमें वो थोड़ा सा बेटर है प्रोडक्शन करने में उसको वो एक्सपोर्ट करेगा और दूसरी वाली को वो इम्पोर्ट कर सकता है इन विच इट हैज अ एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। डिफर्स बिटवीन नेशंस, it is explained by exogenous factors, which could be due to differences in national characteristics. Labor differs in its productivity internationally, and different goods have different labor requirements. So, comparative labor productivity advantage was Ricardo's predictor of trade. एक तरीके से जो कंपैरेटिव लेबर प्रोडक्टिविटी एडवांटेज एक लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर एडवांटेज होती है, और वो क्या होती है कि नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ, जैसे कि लेबर डिफरेंट होती है, हर गुड को बनाने के लिए एक अलग टाइप से लेबर चाहिए होती है, एंड इट्स डिफरेंस इन डिफर्स इन इट्स प्रोडक्टिविटी इंटरनेशनली। तो जो लेबर जहां पे जिस तरीके से अवेलेबल है वो हमारा एक प्रिडिक्टिव फैक्टर बन जाता है इन रिकार्डोस थ्योरी। एक एग्जांपल है जो कि यहाँ पे टेबल इलस्ट्रेट किया इस थ्योरी के लिए। ये जो कंट्री है ये एक्सपोर्ट कर सकती है व्हीट के लिए, और ये जो कंट्री है ये क्लोथ की प्रोडक्शन कर सकती है। अब इन दो केसेस में द कंट्री विच इज, अब इसमें से, अब जैसे ये अगर मैं देखूं तो ये थ्योरी क्या कहती है, ये तो वो वाला केस था जब कंट्री है वो दोनों ही प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जो कंट्री बी है वो इनएफिशिएंट है दोनों ही प्रोडक्शन में, तो जो थोड़ा बेटर वो परफॉर्म कर सकती है, मतलब इसके बीच में थोड़ा कम डिफरेंस है कंपेरेटिवली टू वीट, तो ये वीट को थोड़ा एक प्रोड्यूस करने में इसमें थोड़ा सा कंपेरेटिव एडवांटेज है एज कम्पेयर टू वीट। तो ये पहले इसकी प्रोडक्शन कर लेगी, इसको एक्सपोर्ट कर लेगी और क्लोथ की कर लेगी, और बाद में फिर ये वीट के लिए इम्पोर्ट कर लेगी। His absolute disadvantage is smaller in cloth, इसकी क्लोथ में कम है।
वी की जो डिसएडवांटेज है वो क्लोथ में कम है। Therefore, both nations can gain if country A specializes in the production of wheat and expose some of it in exchange for country B's cloth. Simultaneously, country B should specialize in the production of cloth and expose some of it exchange for country A's wheat. इसमें थोड़ा सा चेंज है। सॉरी, हमने थोड़ा गलत देख लिया शायद फ्लो में। हम एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। इसमें ये चेंज है कि अगर ये वीट की प्रोडक्शन में अच्छी है तो ये इसे एक्सपोर्ट कर लेगी और क्लोथ को इंपोर्ट कर लेगी। वाइस ओवर, जिसमें वो बेटर है उसको वो एक्सपोर्ट कर लेगी और जिसमें वो नेगेटिव फॉल आ रहा है उसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं इन कंट्रास्ट ऑफ इट। जैसे क्लोथ की प्रोडक्शन अगर अगर ये बेटर है तो ये इसको प्रोड्यूस कर सकती है और इंपोर्ट कर सकते हैं मीट को। It is based on comparative advantage and the labor theory of value, which assumes that the value or price of a commodity depends exclusively on the amount of labor going into production. This is quite unrealistic because labor is not only the only factor of production, nor it is used in the same fixed proportion in the production of all commodities. In summary, international differences in relative factor productivity are the causes of comparative advantage. अगर हम कंपेयर कर भी रहे हैं तो इस वजह से करें क्योंकि फैक्टर एक प्रोडक्शन एक हमारा रेलेवेंट फैक्टर है, क्योंकि लेबर अलग अलग होती है हर जगह एंड कंट्री एक्सपोज गुड्स दैट इट प्रोड्यूसेस रिलेटिवली एफिशिएंटली। यहाँ चीप मिल पा रही है लेबर। tendency towards complete specialization in production. Ricardo demonstrated that for two nations without input factor mobility, specialization and trade could result in increased total output and lower cost than if each nation tried to produce in isolation। एक तरीके से पूरी तरीके से स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। बट इसमें सप्लाई कंडीशंस की एक लिमिटेशन है एंड एक्सक्लूड्स डिमांड पैटर्न्स। मोreover the theory does not examine why countries have different cost। अलग अलग कॉस्ट क्यों होती है और डिमांड पैटर्न्स अलग क्यों होते हैं। उसके लिए हमारे पास आती है कंपैरेटिव एडवांटेज क्यों है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड द लेबर फैक्टर। फिर हमारे पास आती है हेक्सर ओलिन मॉडल, न्यूट्रिएंट थ्योरी, और एक आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। Ricardo's theory stresses that comparative advantage arises from differences in productivity. Whether Ghana is more efficient in South Africa in production of cocoa depends on how productively it uses its resources. Different explanation of comparative advantage. They argued that comparative advantage arises from differences in national factor endowments. It usually formulated in terms of two-factor model with labor and capital as the two factors of production. Heckscher-Ohlin theory, what determine trade is differences in factor endowment. Some countries have much capital, others have much labor. एक के पास ज्यादा कैपिटल है तो एक के पास दूसरी लेबर अच्छी है। The theory says that countries that are rich in capital will export capital intensive goods. The countries which have labor will export labor intensive goods. Five assumptions are essential to the analysis. There are no transportation costs, no perfect competition, both the commodity, no homogeneous, no all the production functions are such that two commodities show different factor intensities. The production function differ between commodities, but in the same in both the countries. Produced with the same technique in both the countries, and good bees produced with the same technique in both the countries.
इस मॉडल में हमने ये देखा है कि बेसिकली द डिफरेंस अराइजेस इन नेशनल फैक्टर एंडोमेंट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से टू फैक्टर मॉडल विच सेज लेबर एंड कैपिटल लेबर और कैपिटल डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास कंपेरेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज है एक कंट्री है जो कि विच हैज अ गुड अमाउंट ऑफ लेबर and which has a good amount of capital. It will produce labor intensive good and other will produce capital intensive goods. Okay. Then comes a new trade theory which is by Paul Krugman was developed in 1970s as a way to understand international trade pattern. ये बेसिकली इस तरीके से इंट्रोड्यूस की गई है that क्यों हमारे डेवलप्ड और बिग कंट्रीज आर ट्रेड पार्टनर्स क्यों हैं कोई डेवलप्ड और बिग कंट्रीज आपस में ट्रेड पार्टनर्स क्यों हैं एंड व्हाई दे ट्रेड करते हैं सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज भी they constitute more than 50% of world trade 50% of world trade कहाँ से होता है जो कि developed और big countries we have cars made in India yet we purchase many cars made in other countries these are usually products that come in from large global industries and directly impact international economies because of substantial economies of scale and network effects it pays to export phones to sell in another country सस्ते तरीके से लोग प्रोडक्शन कर पा रहे हैं इट पेज टू एक्सपोर्ट फोन वो चीज उन्हें एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है और बेचनी पड़ रही है दीज कंट्रीज विल विद द एडवांटेज विल डोमिनेट द मार्केट एंड द मार्केट टेक्स द फॉर्म ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया है यहाँ सस्ते में लेबर मिल रही है उसी चीज को वो एक्सपोर्ट करके और फिर बेचने लग जाते हैं firms are producing a similar product according to an entity two key concepts give advantage to countries that import goods to compete चीजों को इम्पोर्ट तो कर रहे हैं हमारे पास वो चीज अवेलेबल है येट वी आर परचेजिंग इट फ्रॉम अदर कंट्रीज जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से मिल रहा है इतना ज्यादा नेटवर्क एक्सपैंड हो गया इतना ज्यादा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो गया है हमें अपने जो फोन है वो कोई नहीं खरीदना चाह रहा हमें एक्सपोर्ट करने पड़ रहे हैं दूसरी कंट्री में बेचने के लिए जिन्हें एडवांटेज हो रहा है वो कंपनी डोमिनेट मार्केट में डोमिनेट करने लग जाएंगी और बिग कंट्रीज हैं जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन दो फैक्टर्स की वजह से हमारे इट गिव एडवांटेजेस टू कंट्रीज दैट इंपोर्ट गुड्स जो कि इंपोर्ट कर पा रही हैं होम कंट्री के गुड्स से compete करने के लिए As the firm produces more of a product, its cost per unit keeps going down. जितना ज्यादा वो एक प्रोडक्शन करता चला जाएगा उसकी कॉस्ट उतनी कम होती चली जाएगी It serves domestic as well as foreign market instead of just one. It can reap the benefit of large scale production higher. Network effects. The way one person values of a good service is affected by the value of that good or service to other. The value of the product or service is enhanced as the number of individuals using it increases. This also refers to as a bandwagon effect. एक पर्सन अगर उस चीज को अलग तरीके से वैल्यू करता है गुड को तो दूसरा पर्सन उसे अलग तरीके से वैल्यू करता है जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है इस वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स हो जाते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यूजेस उसके यूजर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं जिसको हम बैंडवैगन इफेक्ट भी बोलते हैं यह मल्टी नंबर ऑफ बायर्स और हर एक का अपना अपना वैल्यू और ओपिनियन है एक प्रोडक्ट के बारे में लाइक मोर चॉइसेस बट दे आल्सो वांट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद हाई यूटिलिटी जैसे ये लोग मोबाइल ऐप में व्हाट्सएप भी चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फिर हम आते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी पे
which was propounded by economist Raymond Warren. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहती है हमारी? It determines the growth, maturity and decline of a product and how life cycle stages determine एक point rate कब होना चाहिए. It, it determines that from the invention of a product to its demise to a lack of demand, the product goes through four stages, which is introduction, growth, maturity and decline. अगर हम चारों stages को अगर study करें, is the typical stages a product goes through during its lifetime. The product life cycle is broken into 5 different stages, which include the development stage, फिर आती है introductory, growth, maturity and decline stages of the product. Characteristics for each stage differ and in response to the different needs of the product as it moves through its life cycle. The market mix used during these stages differ as well. हर स्टेज पे अलग अलग मार्केटिंग मिक्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. First introduced in 1950s to explain the expected life cycle of a typical product, divided into the phase of product introduction, product growth, maturity and decline. अब अगर हम पढ़े लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट के 4 फेज होते हैं. इंट्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं इनिशियल लेवल पे, इट इज लॉन्च करता है जब वो मार्केट में, कस्टमर ही जहाँ पे उसके इनोवेटर हैं. कंपटीशन नेग्लिजिबल है क्योंकि नया नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में एंड प्रॉफिट्स आर नॉन एग्जिस्ट क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस ही किया है. ग्रोथ वो स्टेज होती है जहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट सबसे ज्यादा होते हैं और कॉम्पिटिटर सेंटर करने लगते हैं मार्केट में, वो बहुत ज्यादा पीक पे होती है. ग्रोथ प्रॉफिट्स हमारे कम होने लगते हैं क्योंकि धीरे धीरे अब एकदम से चढ़ा है प्रोडक्ट तो वो गिरेगा भी. मार्केट में आया है तो उस लोगों को उसके बारे में पता लगा, उसके कॉम्पिटिटर्स गए हैं तो अब एकदम से उसके प्रॉफिट्स गिरने शुरू भी होंगे क्योंकि कॉम्पिटिटर्स, हाँ, इसका राइवल प्रोडक्ट भी बेचने लग जाएंगे. मेच्योरिटी वो होती है जहाँ पे वो सुप्रीम पीक पे पहुंच चुका होता है. सेल्स कंटिन्यू टू इंक्रीज, सेल्स तो बढ़ रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट बढ़ रही है. व्हेन सेल्स लेवल ऑफ पॉइंट्स ऑफ बोथ प्रोड्यूसर्स एंड मिडलमैन डिक्लाइन, व्हेन सेल्स तो बढ़ रही है, प्रॉफिट्स ऑफ बोथ प्रोड्यूसर्स एंड मिडलमैन कम हो रहे हैं. द मेन रीजन इज इंटेंस प्राइस कंपटीशन. सेल्स तो बढ़ रही है, लोग खरीद तो रहे हैं उसे, बट प्रॉब्लम इज विद द प्रॉफिट्स ऑफ प्रोड्यूसर और मिडलमैन उतने नहीं रहे. ना उसके प्रोड्यूसर इतने रहे ना उसके मिडलमैन, क्योंकि हम उस स्टेज पे जो उसकी ग्रोथ थी तो वो नया नया आया था, तब उसकी एक तरीके से मोनोपोली हो गई थी. अब धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स आए तो मोनोपोलिस्टिक स्टेज में आ गया हमारा, बहुत ज्यादा प्राइस कॉम्पिटिशन हो गया. सम फर्म्स एक्सटेंड देयर प्रोडक्ट लाइंस विद न्यू मॉडल्स. Saturation and decline. At least a point comes when it starts appearing that market has bought enough of the product. Decline in sales volume characteristics is last phase of the product's life. The need or demand for the product disappears. Availability of better and less costly substitutes in the market accounts for the arrival of the phase. Introduction, growth, जहाँ पे उसकी sales भी increase हो रही है, profit भी हो रही है at an increasing rate. Maturity, where it is the sales is increasing but at a decreasing rate because of the profits of both producer and middleman starts declining, and because of intense price competition. And saturation and decline, where it is decreasing its sales and profit at a very high decreasing rate. ये टाइम है जब इंट्रोडक्शन है उसका पीक है, ये उसकी ग्रोथ की स्टेज है. अब ये बिल्कुल मेच्योर हो चुका है प्रोडक्ट, इंक्रीज तो कर रहा है पर वो डिक्रीज भी की सिचुएशन में जा रहा है, बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका है. नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, क्वार्टर्स टाइमिंग. Four broad attributes of nation that shape the environment in which local firm competes, and these attributes promote or impede the creation of competitive advantage. These attributes are factor endowments, nation's positions in factors of production, फैक्टर नेशन की क्या पोजीशन है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड कंडीशन, नेचर ऑफ होम डिमांड क्या है एक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की, रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज के राइवल्स क्या है, उसके सप्लायर्स क्या है, और सप्लायर प्रेजेंट है एब्सेंट है मार्केट में कितने सप्लायर्स हैं, उसकी रिलेटेड इंडस्ट्रीज क्या है, फर्म स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, द कंडीशंस गवर्निंग हाउ कंपनीज विल क्रिएट ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द नेचर ऑफ डोमेस्टिक राइवलरी. नेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर हम पढ़ना चाहे तो याद करने के लिए इसके फैक्टर, प्रोडक्शन, डिमांड की कंडीशन, रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रक्चर एंड राइवलरी.
He argues that firms are most likely to succeed in industries or industry segments where the diamond is most favorable. He also argues that diamond is mutually reinforcing system. The effect of one attribute is contingent on the state of others. Porter argues favorable demand condition will not result in competitive advantage unless a state of rivalry is sufficient to cause firms to respond to them. ये इतना रिलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस समझाने के लिए बताई गई है. प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स की कस्टमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है. इन्फेंट इंडस्ट्री जो अभी अभी मार्केट में आए हैं. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड बाय मैनी डेवलपिंग नेशंस. द गवर्नमेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंपनी विल लेवी टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स इन इंडस्ट्रीज इन विच इट वांट्स टू फोस्टर ग्रोथ. जहाँ पे उन्हें ग्रोथ बढ़ानी हो टैरिफ लगाने लग जाते हैं इन्फेंट इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए. दिस इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड क्रिएट्स अ डोमेस्टिक मार्केट फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स goods and while protecting those industries from being forced out from the competitive pricing. For the national security, barriers are also employed by developed countries to protect certain industries that are deemed strategically very important, such as those supporting national security जिनसे बहुत ज़्यादा revenue generate हो रहा है और बहुत ज़्यादा they are contributing to the GDP of the nation. Defense industries are often viewed as a vital to state industries and often enjoy a significant level of production. Retaliation. We also set tariffs as a retaliation. दूसरी भी टैरिफ लगा देगी if they think that they are trading partner as not played by the rules. टैरिफ भी फिर हमारे बहुत तरीके के होते हैं, जैसे हम कहते हैं टैरिफ बैरियर्स और होते हैं हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स. टैरिफ बैरियर्स, टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स.